Hello everyone, in this video we are going to cover MCQs of chapter Heron's formula from NCERT exemplar. As we know that we use Heron's formula to calculate the area of triangle when the length of all three sides is given. And this is the Heron's formula where A, B, C are stands for the lengths of all three sides and S stands for semi-perimeter. Semi-perimeter means half of the perimeter. We have to add all these three sides and divide it by 2. This is called semi-perimeter, and the formula to calculate the area is under the root S multiplied by A, S multiplied by B, S multiplied by C. And by solving this root we can calculate the area of triangle when the length of all three sides is given. Okay, let's start with the MCQs. We have to do firstly this example. The base of the right triangle is 8 centimeter and its hypotenuse is 10 centimeter. Its area will be what? What is given? We are given with a right angle triangle in which the length of the hypotenuse. First of all, you must know that what is called the hypotenuse, the side which is opposite to 90-degree angle. That is the longest side in a right angle triangle. It is called hypotenuse. This is called base and this is called perpendicular. Right? Now the next one is what is given? Base is given. Base is 8 centimeter given and hypotenuse is 10 centimeter given. You have to find out the area of this triangle. As we know that to calculate the area of triangle we are using the formula 1/2 base into height so far, right? अब तक हमने बहुत सारी ट्राइंगल्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है 1/2 बेस इंटू हाइट. अगर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द बेस. जो 90 डिग्री के एंगल की आर्म्स होती हैं उसमें से एक को बेस लेते हैं और एक को क्या लेते हैं? हाइट. राइट? अगर हमारे पास ये दोनों लेंथ्स होती तो हम डायरेक्टली इसका एरिया निकाल सकते थे, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज है. तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें इसकी हाइट परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देन वी कैन यूज़ 1/2 बेस इनटू हाइट. तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर. राइट? व्हाट वी हैव, this is Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse is given 10 square and base is given 8 square. Let's calculate perpendicular. 10 square is 100, 8 square is 64 plus p square. This is 100 minus 64 is equal to p square, which is equal to 36 p square, and p will be under the root 36. We can say p is equal to 6 centimeter. Now this was our right angle triangle in which the base was given 8, hypotenuse was given 10 centimeter and height perpendicular we calculated as 6 centimeter. To find out its area we can use, this is ABC, we can use area of triangle ABC is equal to 1/2 base is BC and its corresponding height, that is AC. 1/2 BC is 8 and AC is 6. 2 4s are 8. Answer is 24 centimeter square. And which one is the correct option? A option is the correct option. Hope it is clear. An isosceles right triangle has area 8 centimeter square. Then the length of its hypotenuse is what? उन्होंने बोला है एक आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स उसमें दो साइड्स इक्वल हैं. अब आपको भी पता है कि अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो बाकी की जो दो आर्म्स हैं जो राइट एंगल को कंटेन करती हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. एंड इट्स एरिया इज गिवन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड आउट इट्स हाइपोटेन्यूज. ओके, लेट्स ड्रॉ इट्स डायग्राम फर्स्ट. We are going to start with exercise 12.1. This is first MCQ. We are having a right angle isosceles triangle. If it is a right angle, then this is the 90-degree angle and this is our hypotenuse, and these two sides
कैन बी इक्वल इफ इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही किसी के इक्वल नहीं हो सकता, वो तो सबसे बड़ी साइड होती है ना. अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम दोनों साइड्स की लेंथ को क्या कंसिडर कर लेंगे, x एंड x. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड एरिया इज गिवन. व्हाट इज इट्स एरिया गिवन? एरिया ऑफ triangle ABC is given. We can see it is 8 centimeter square. Area is given 8 centimeter square. तो यहाँ पे हम एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 बेस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. बेस इज x and height is also x, which is equal to 8. Now calculate it. This is 1/2. X multiplied by x is x square. It is not 2x, right? 8. Now you have to transpose this 2 on another side. You will get x square is equal to 8 multiplied by 2. X square is equal to 16. X will be under the root 16 and the length of x will be 4 centimeter. What is the side? Each side is 4 centimeter. अगर उसकी ये भी साइड 4 सेंटीमीटर है और ये भी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो how we can find out its hypotenuse? To find out its hypotenuse, we have to use Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. What is the hypotenuse here that we have to calculate? We can take it as AC square. What is BC? 4 square. And what is perpendicular? That is also 4. Both are equal ना. This is 16 plus 16. 16 plus 16 is 32. अब जब आप AC के ऊपर स्क्वायर देखेंगे तो ये 32 के ऊपर ट्रांसपोज होके स्क्वायर रूट बन जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 इज हाउ मेनी टाइम्स 2? 5 टाइम्स. यहाँ पे इसका भी पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन गए 2 के. एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से. हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा. आंसर विल बी 4√2 सेंटीमीटर. तो लेट्स चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. ओके, उन्होंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया. उन्होंने ए ऑप्शन में √32, हमारा √32 ही आंसर आया था. हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमने सिंप्लीफाई नहीं करा. वो तो बेटा ऑप्शंस पे डिपेंड करता है. जिस तरह से भी आपको ऑप्शंस दे रखी होंगी आपने उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को क्लिक करना है. तो आंसर इज √32 centimeter. Hope it is clear. Let's start with the next question. Okay, start with question number 2. Question is perimeter of an equilateral triangle. The perimeter of an equilateral triangle is 60 meter. Then find its area. आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? Equilateral triangle का perimeter दे रखा है. Equilateral triangle means triangle in which all 3 sides are equal. Right? ABC is an equilateral triangle if its all 3 sides are of same length and all 3 angles are also equal. And what is called perimeter? Perimeter means sum of all sides. What it is called? Sum of all sides. और कितनी साइड्स हैं यहाँ पे? 3. अगर हम मान लें कि इसकी हर एक साइड A यूनिट्स है तो तीनों साइड्स का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3A. और उन्होंने हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 60. राइट? होप इट इज़ क्लियर. हमने हर एक साइड की लेंथ को क्या ले लिया? A. बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. हमारे पास पेरीमीटर बनेगा सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, दैट इज A plus A plus A विच इज़ इक्वल टू 3A. and we have to equate it with 60 as the perimeter is given 60. Now calculate the value of A. You will get 60 divided by 3 which is equal to 20. A कितना आ गया हमारे पास? 20. Now what is the formula to calculate area of equilateral triangle? Area of equilateral triangle is under the root 3/4 side square. What is the formula to calculate the area of equilateral triangle? Under the root 3/4 side square. स्क्वायर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, राइट? अब हमारे पास रूट 3/4 आ जाएगा और साइड कितनी है? 20. तो हम 20 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 3/4. 20 स्क्वायर इज़ 400. आप इसको कट करेंगे तो यू विल गेट
100√3. दिस इज़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 100√3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पेरीमीटर भी किस में दे रखा था, सेंटीमीटर्स में. होप इट इज़ क्लियर. एक बार चेक कर लेते हैं. ओह नो, हमें पेरीमीटर मीटर्स में दे रखा था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, मीटर्स, और एरिया में भी क्या आएगा हमारे पास, दिस इज़ मीटर स्क्वायर. गॉट इट. एंड द करेक्ट आंसर इज़ 100√3 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. बेटा ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, या फिर एरिया दिया हो, साइड्स फाइंड आउट करो, और पेरीमीटर दिया हो, तब आपको पहले साइड निकालनी है, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट. और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर. और ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगता है. बच्चे क्या करते हैं, इसको बाकी ट्राइंगल्स में भी लगा देते हैं. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ओनली equilateral triangle, right. Now the next one is the sides of a triangle are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 centimeter long. Then the area of the triangle is what. उन्होंने बोला है ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ. आप मान लो कि A हमारे पास 56 सेंटीमीटर है, B हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, और C हमारे पास 52 सेंटीमीटर है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस. एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. नाउ ऐड ऑल दीज थ्री साइड्स. 56 प्लस 60 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2. व्हाट आंसर यू विल गेट, 6 प्लस 2 इज 8, 5 प्लस 5 इज 10 प्लस 6 16 divided by 2. 2 8s are 16, 2 4s are 8. We got 84. Now area by using Heron's formula is under the root. This is area, right? S minus A, S minus B, S minus C. What is S? S stands for semi-perimeter, and we got S is equal to 84. This is 84 minus 56. Now the next one is 84 minus 60, and the next one is 84 minus 52. चलिए स्टार्ट करते हैं. This 84 will remain as it is. Now 84 minus 56, इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है आपके पास. Okay, let's do the next one. 84 minus 56. 84 minus 56 is 28. 84 minus 60 is 24, and 84 minus 52 is, this is 32. Yes. Now we have to do prime factorization. ऐसा नहीं है कि आप इन सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये ऑलरेडी हमारे पास कुछ हद तक फैक्टराइज हो रखे हैं, बट हमें इसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, राइट. 84 इज 12, 7 are 84. 12 is 2 into 2 into 3 into 7, 28. 7 4s are 28. That is 2 into 2 into 7, 24. 24 can be written as 8 3s are 24, and 8 is 2 into 2 into 2 into 3. Right now 32. 32 means 5 times 2. 1 2 3 4 and 5. अब हमें पेयर्स बनाने होते हैं. 1 पेयर, इसका भी बन गया, गॉट अनदर, एंड दिस इज़ अनदर वन, एंड दिस इज़ अनदर वन. यू कैन सी दिस इज़ वन मोर. अब यहाँ से 3 और 3 का भी बन जाएगा, और 7 और 7 का भी बन जाएगा. तो हमारे पास रूट में कुछ भी नहीं बचा है ना. हाउ मेनी टाइम्स 2 वी हैव, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2. 2 into 2 3 4 5 and 6. Then we are having 2 times 1 times 3, 1 times 7. 1 2 3 4 5 and 6, right. Now you have to multiply them all. This is 64 multiply by 21. इन दोनों को multiply करें. When you will multiply them, you will get 1 3
0.44 centimeter square, right? This is centimeter square. And which one option is the correct option? C is the correct option, right? Hope it is clear. C is the correct option. Now the next one is the area of equilateral triangle with side 2√3. आपको equilateral triangle का एरिया निकालना है. मैंने आपको पहले ही बताया equilateral triangle वाले क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में. मैक्सिमम टाइम्स MCQs में equilateral triangle का क्वेश्चन आ ही जाता है हीरोन्स फार्मूला में. द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2√3 सेंटीमीटर. आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है और आपको साइड दे रखी है. हमें साइड कितनी दे रखी है? साइड इज़ 2√3 सेंटीमीटर. हमें एरिया निकालना है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर, राइट. अब ये आपके पास आ जाएगा √3/4. साइड इज़ 2√3 का स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन होगा? यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. 2 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, राइट. दिस इज़ √3/4. और अगर बीच में प्लस का साइन होता तब a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 इज़ 3. √3 का स्क्वायर 3. 4 से 4 कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है इसके साथ. इसका मतलब आपको √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पे. और √3 की वैल्यू कितनी होती है? अगर तो आपको √3 की वैल्यू आती है, नहीं याद है, तो आप सीधा भी पुट कर सकते हैं. √3 की वैल्यू होती है 1.732. अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप √3 की वैल्यू मेरे साथ कैलकुलेट करके सीख लें. हाउ वी कैन फाइंड आउट. कम से कम हमें 2 डेसिमल प्लेस तक तो रूट फाइंड आउट करना आना चाहिए, राइट. दिस इज़ 3. सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना. तो स्क्वायर रूट में हम क्या यूज़ करते हैं? टेबल ऑफ स्क्वायर्स. मतलब 1 1 जा 2 2 जा. यहाँ पे कौन सा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेटिस्फाई कर रहा है? 1 1 जा. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ जस्ट स्मॉलर देन 3. अगर आप 2 2 लेते तो ये 4 हो जाता और ये 3 से बड़ा हो जाता. तो 1 1 जा 1. 3 - 1 इज़ 2. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो भी यहाँ पे नंबर है उसका आपने डबल करना होता है. मतलब 1 इसमें सेम नंबर प्लस करना है. 1 + 1 जो आपने अभी लिखा है दैट इज़ 2, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको हम नीचे ला सकें और हमारे पास रिमाइंडर 0 भी नहीं आया है. इसका मतलब ये डिवीजन तो आगे चलेगी. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद हम लगाएंगे ज़ीरोस, राइट. हमें जितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए उतने ही पेयर ऑफ ज़ीरोज़ हम नीचे उतारेंगे. हमारा यहाँ पे आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक दे रखा है तो इसलिए मैंने 3 पेयर्स ऑफ ज़ीरोस यहाँ पे ले लिए हैं. नाउ आई विल ब्रिंग डाउन द फर्स्ट पेयर ऑफ ज़ीरो. आई गॉट है 200. अब आपको एक डिजिट यहाँ पे लिखना है और एक डिजिट यहाँ पे लिखना है. दोनों जगह पे डेसिमल आएंगे. जब आप इसमें डेसिमल डालेंगे तो ऊपर भी डेसिमल आएगा. एक डिजिट आपको डेसिमल के बाद यहाँ पे लिखना है और एक 2 के साथ लिखना है. दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जस्ट स्मॉलर देन 200 होना चाहिए, राइट. अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास आता है 20 25 5 जा 125. ये तो भी बहुत छोटा है. आप 26 6 सा करके देखें. 6 6 सा 36. 3 लेफ्ट. दिस इज़ 156. यहाँ पे 27 7 सा करके देखें. 7 7 सा 49. 4 लेफ्ट. 7 2 सा 14 + 4 189. दिस इज़ 189. What is left? 10 - 9 is 1. Here we are having 9 - 8 is 1. तो यहाँ पे तो 1 था, ये तो ख़त्म हो गया, राइट. Now bring down. यहाँ पे किसके? We are having 7 and 7. Now bring down the another pair of zeros down. अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? आपने जो नंबर लास्ट में अभी लिखा होता है ना, आप इसी को फिर से ऐड करते हैं. 7 + 7 is 14. 1 2 + 1 is 3. Again you have to fill one number here and one number here and both the numbers must have the product just smaller than 1100, right. तो 3 4 3 करके देखें. 3 से मल्टीप्लाई करिए. 3 3 ज़ा 9. 4 3 ज़ा 12. 2 3 3 ज़ा 9 + 1 10. अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते 4 3 ज़ा 12 होता तो ये बड़ा हो जाता. दिस इज़ 1 0 2 9, राइट.
और हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिया है 3। हमें 2 डेसिमल प्लेस तक 3 की वैल्यू √3 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 - 9 इज़ 1, दिस इज़ अगेन 9, 9 - 2 इज़ 7, दिस इज़ 0 एंड 1 - 1 इज़ 0। नाउ ब्रिंग डाउन द अनदर पेयर। हमें जितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है उतने ही हम जीरोस के पेयर नीचे लेके आएंगे, राइट। अब आपने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा था लास्ट में 3, 33 का अब आप डबल करोगे, मतलब इसमें जो नंबर हम लास्ट में लिखते हैं उसी को फिर से ऐड करना होता है। 3 + 3 इज़ 6, दिस इज़ 4, दिस इज़ 346। अब आप एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे और एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे एंड देयर प्रोडक्ट मस्ट बी जस्ट स्मॉलर देन 7100। तो अगर आप यहाँ पे 3 से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार 2 से करके देख लेते हैं, अदरवाइज़ 1 से कर लेंगे। इसको 2 से करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, 1 लेफ्ट, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 3 × 2 = 6, दिस इज़ 1624। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा डिजिट सेटिस्फाई कर रहा है, 2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज़ 1.732। वैसे तो बेटा देखो, आपको ये 2 वैल्यूज़ तो हमेशा याद ही रखनी चाहिए, एक √2 की और एक √3 की। √3 की होती है 1.732, मैथ्स में बहुत यूज़ होती है, और √2 की होती है, आपको पाई की वैल्यू पता है क्या होती है, 3.14 होती है ना। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, राइट, 3 डेसिमल प्लेस तक। अगर आप 2 तक भी देख लें तो भी आपका आंसर आ जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब आपके पास यहाँ पे था 3√3, 3 × √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1.732। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 1 लेफ्ट, 3 दिस इज़ 2 लेफ्ट, है ना। 3 × 7 = 21, 2, 3 × 1 = 3 + 2 5, this is 5.196, and which one is the correct option, this is 5.196, is A option is the correct answer. Hope it is clear. Now let's do the next one, question number 5. The length of each side of the equilateral triangle having area 9√3. Again very good question. उन्होंने बोला है find the length of each side of equilateral triangle having area 9√3. आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर आपको एरिया दे रखा है तो आप इसको एरिया के साथ इक्वेट करेंगे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हर देखो 3 बार कर चुके हैं हम ये, √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9√3, राइट। एरिया को हमने एरिया के साथ इक्वेट कर दिया, √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9√3। अब आप इसको कैलकुलेट करें, साइड स्क्वायर वी विल कीप ऑन दिस वन साइड ओनली, 9√3, और ये जो फ्रैक्शन है ये दूसरी साइड पे जाके इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज साइड इज इक्वल टू 9 × 4 = 36, और ये स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा √36 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। होप इट इज़ क्लियर। कितना आ गया हमारे पास, ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने बस हमें साइड पूछी थी, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, if the area of equilateral triangle is 16√3 centimeter square, then the perimeter of the triangle is what? अब उन्होंने आपको फिर से यहाँ पे एरिया दे रखा है और आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच साइड। आफ्टर गेटिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द 3 sides are equal, and we can add them thrice. It is all up to you. First of all, this is question number 6. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दे रखा है, दैट इज़ √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3 इज गिवन। यहाँ से हमें साइड निकालेंगे पहले। दिस इज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3, और 3/4 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इज़ 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइड स्क्वायर 16 × 4 =
64 रूट स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर जाके किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में, तो साइड कितनी आ जाएगी 64 किसका रूट होता है 8 8 से 64, साइड विल बी 8 सेंटीमीटर। बट हमें साइड नहीं पूछी थी, हमें क्या पूछा था पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तीनों साइड सेम होती हैं, दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ 24 सेंटीमीटर। इट इज़ नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ सेंटीमीटर बिकॉज पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है लेंथ होती है, राइट, सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज the sides of the triangle are 35, 54, 61 respectively, then the length of its longest altitude. Okay, now the question is the sides of the triangle, the three sides of triangle are given. You have to find out the length of the longest altitude. Altitude means height. अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो हमारे पास एक ट्राइंगल में कितने ऑल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं 3, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड। जैसे ए से परपेंडिकुलर हम बी सी पे फॉल कर सकते हैं, बी से हम ए सी पे फॉल कर सकते हैं, और सी से हम ए बी पे एक परपेंडिकुलर फॉल कर सकते हैं। ऑल दीज 3 आर कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड्स। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा। अब कैसे बता सकते हैं बेटा, आपको एक चीज़ का यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। देखो यहाँ पे तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया ना, अब आप एक बार ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल को देखें, दिस वन ए बी सी। अगर मैं बोलूँ कि आपने बी से ए सी के ऊपर ऑल्टीट्यूड फॉल करना है तो ये बनेगा हमारा बी एल, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आपने ए से बी सी के ऊपर फॉल करना है तो ये अंदर नहीं बनेगा, ये हमारा कैसे बनेगा, इट विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल। गेटिंग मी। अब आप एक बात बताएं कि आपको पता है जब भी हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे कैसे पता चलेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सी साइड के ऊपर फॉल करेगा। जिस साइड की लेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होगी उसके ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड फॉल करेगा, और जिस साइड की लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी उसके ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड फॉल करेगा। बेटा वैसे सोचने वाली बात है ना। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब उसी बेस के ऊपर फॉल करने वाली हाइट, राइट। अब अगर आप देखें कि अगर आप सबसे बड़ा बेस ले लेंगे और सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड ले लेंगे तो एरिया तो बहुत बड़ा आ जाएगा ना। जो साइड सबसे बड़ी होती है, जो साइड सबसे लॉन्गेस्ट होती है उसके ऊपर सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड फॉल करता है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है उसके ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड फॉल करता है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें सबसे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड किस साइड के ऊपर फॉल करेगा, जिसकी लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, और इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी है 35 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन करना कैसे है, हमारे पास तीनों साइड्स ट्राइंगल की गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, देन यू हैव टू इक्वेट इट विद 1/2 बेस इनटू हाइट। बट यहाँ पे आपने बेस कौन सा लेना है, अगर आपने लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है तो सबसे छोटा वाला बेस लेना है, और हाइट को h कंसिडर कर लेंगे, दोनों एरियाज को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन से हमारे पास वी कैन कैलकुलेट व्हाट, वी कैन कैलकुलेट हाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, दिस इज़ 35 + 54 + 61 डिवाइडेड बाय 2। 5 + 4 is 9 + 1 is 10, 0, then 1, 6 + 5 11, 12, 13, 14, 15, 150 divided by 2, 2 7s are 14, 1 left, 2 5s are 10, s कितना आ गया हमारे पास 75। now find out area. Area will be under the root semi perimeter minus first side, semi perimeter minus second side, semi perimeter minus third side. Getting? Now calculate it. This is 75. 75 minus 35. 5 minus 5 0. This is 40. 5 minus 4 is 1. 7 minus 5 is 2.
5 minus 1 is 4, 7 minus 6 is 1. Now do the prime factorization of all these numbers. 25 3s are 25 is 5 multiply by 5 multiply by 3. 40 is 10 into 4. 10 is 2 into 5 and 4 is 2 into 2. Now 21 is 7 into 3 and 14 is 2 into 7. Now let's make pairs. 3 के साथ बन जाएगा. This one 2 will with this and this. 5 is with this one. 5 is left. We don't have any pair of it, and 7 is with 7, right? Okay. What we have? 1 5, then 1 3, then 1 2, 1 more 2, and 1 7. And what is left under the root? 5 is left, right? Now we are having 5 2s are 10 and 5 2s are 10 and 6. This is 5 2s are 10 0. 3 2s are 6 और हमारे पास है 6 7s are 42. 420 root 5. This is the area. अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करेंगे. उन्होंने बोला है आपको कैलकुलेट करना है लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड. तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सी साइड के ऊपर फॉल करेगा? शॉर्टेस्ट साइड के ऊपर, राइट? तो हम इसके बाद क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 420 रूट 5. अब इसमें से हमने बेस और हाइट कौन सा लेना है? हर एक के साथ सेम ही निकलेगा ना बेटा. आप खुद सोचें, अगर एक ट्रायंगल का एरिया आपने किसी भी मेथड से निकालोगे, हर मेथड से क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए. तो दिस इज़ 1/2. लॉन्गेस्ट साइड निकालने के लिए आपने शॉर्टेस्ट बेस लेना है 35 मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज़ 420 रूट 5. अब ये हाइट तो इधर ही रहेगा. 420 रूट 5, ये 2 डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 35 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट? 35 5 हाउ मैनी ज़ा? 7 ज़ा 7 6 ज़ा, दैट इज़ हाइट इज़ 60 रूट 5 सेंटीमीटर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉट देयर. ओके, लेट्स चेक. देयर इज़ वन एरर एंड द एरर इज़, हमें यहाँ पे 2 ट्रांसपोज किया था, तो यहाँ पे 5 की जगह पे क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था. तो हम इसको एक बार फिर से करते हैं. वी आर हैविंग हाइट इज इक्वल टू 420 रूट 5, ऊपर 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा? 35. अब कटिंग करते हैं हम इसकी. 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 5 1 ज़ा 5 and this is 12. H will be 12 root 5 multiplied by 2 and answer is 24 root 5. Hope it is clear. Correct, and the correct answer is C option is the correct answer. Hope आपको समझ में आ गया होगा. Now let's do the next one. Okay, the question is the area of an isosceles triangle having base 2. आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस कौन सा होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और ये जो अनइक्वल साइड होती है दिस इज कॉल्ड बेस, राइट? एंड व्हाट इज बेस गिवन? 2 सेंटीमीटर. एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज़ 4. अगर एक 4 है तो दूसरी भी कितनी आ जाएगी? 4 ही आ जाएगी, राइट? अब उसके बाद उन्होंने बोला फाइंड इट्स एरिया. बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि अगर इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की हैं तो बेस वो साइड होती है जो, अगर 2 इक्वल साइड्स हैं तो जो थर्ड साइड होती है जो अनइक्वल होती है दोनों साइड्स के, दैट इज़ कॉल्ड द बेस. दिस इज़ द बेस. बेस इज़ गिवन 2 एंड उन्होंने बोला था वन ऑफ द इक्वल साइड इज़ 4. वन ऑफ द इक्वल साइड इज़ 4, द अनदर वन विल ऑल्सो बी 4. सबसे पहले आप एस कैलकुलेट करेंगे. एस कितना आ जाएगा आपके पास? दिस इज़ 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज़ 4 + 4 इज़ 8. 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 10. 10/2 दैट इज़ 5. ऐसा आपके पास 5 आ गया. तो एरिया कितना आ जाएगा? द फॉर्मूला इज़
under the root 10 minus 5, this is 5 minus 4, this is 5 minus 4 again, this is 5 minus 2, semi perimeter is 5, this is 5 minus 4 is 1, 5 minus 4 is 1, 5 minus 2 is 3. अब यहाँ पे हमारे पास है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो बस एक ही पेयर बन रहा है 2 का, और कोई पेयर बन नहीं रहा है, तो 5 और 3 तो रूट के अंदर ही रहेंगे, तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और दिस इज़ 2 रूट 15 इज़ द करेक्ट आंसर. एंड विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? C इज़ द करेक्ट आंसर. होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. लास्ट क्वेश्चन. The edges of the triangular board are 6 cm, 8 cm and 10 cm. The cost of painting it at the rate of ₹9 per centimeter square is what? अब यहाँ पे आपको कॉस्ट भी दे रखी है, राइट? कॉस्ट किसको, पेंटिंग किसको करनी है? द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब वो एरिया की बात कर रहे हैं, है ना? किसको पेंट करने की बात कर रहे हैं? एरिया को पेंट करने की बात कर रहे हैं. तो एरिया सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर लें. ऐसा आ जाएगा आपके पास 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 14 + 10 is 24 divided by 2, that is equal to 12. 6 + 8 is 14, 14 + 10 is 24. Now area is under the root 12, 12 minus 6, 12 minus 8, 12 minus 10. This is 12, 12 minus 6 is 6, 12 minus 8 is 4, 12 minus 10 is 2. Now do the prime factorization of all. 12 is 4 3s are 2 into 2 into 3. 6 is 2 3s are 4 is 2 2s are, and multiply by 2. This is the pair, this is another, this is another, and we got one pair 2. एक यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा. What we got? 3 2s are 6, 6 4s are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ गया? एरिया. अब उन्होंने कॉस्ट क्या दे रखी थी? एट द रेट ₹9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 9 पैसे है, राइट? बट ये जो हमें आंसर दे रखा है ये रुपीस में है, तो हमें पहले पैसे दे रखे हैं. हम पैसे में इसको रुपीस में बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं. पहले तो हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. तो टोटल कॉस्ट विल बी 24 मल्टीप्लाई बाय 9. तो कितना आंसर आएगा आपके पास? यू विल गेट 9 4s are 36, 3 लेफ्ट, 9 2s are 18, 216 पैसे. अब अपने इसको रुपीस में चेंज करना है. आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट? 100. यस. और अगर ये पैसे में है तो इसको रुपीस में चेंज करने के लिए स्मॉलर टू बिगर हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है. वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. तो आंसर विल बी 2.16 रुपीस. 2.16. बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? पैसे हैं हमारे पास, तो पैसे को चेंज करने के लिए हमें इसको रुपीस में चेंज करना है. पैसा छोटा यूनिट है, रुपीस बड़ा यूनिट है. स्मॉलर टू बिगर जब भी चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है. तो हमने डिवाइड कर दिया. कन्वर्जन आपको पता है कैसे होती है? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे. तो यहाँ पे हम 100 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो यू विल गेट 2.16 इज़ द करेक्ट आंसर. होप इट इज़ क्लियर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.